दरवाजा बंद कर दो। अब आगे आते हैं, मेरी आसानी हो जाएगी। Sit at a distance, but आगे तशरीफ लाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। The ayah that I just recited, the first part of the ayah, Allah Ta'ala mentions Ar-Rijalu Qawwamun ala Nisa, that men are qawwam over women, right? आमतौर पे उर्दू ज़बान में इसको ऐसे समझा जाता है that men are actually authoritative, or maybe they are an authority, or maybe they are superior to women. That's a tremendous mistranslation of the concept of this ayah, कि मर्द जो हैं वो औरत पे से superior हैं या authority हैं या कोई ऐसी चीज़ है. Actually, the word kawam is from the Arabic word kama yakumu, which actually has to do something with being active and taking care of. Allah Rabbul Izzat ka ek naam hai Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. We read this in Ayat al-Kursi. Ar-rijalu qawwamun an-nisa, simply translated, is basically that men are caretakers of women. Men have been given responsibility. It's not about authority, it's about men taking responsibility to take care of their women. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. And then in particular, in reference to caretaking in a financial sense. आपने knows हम ये university में भी पढ़ाते हैं. So, you look at the Islamic history, and we talk about a lot of things tonight, that Islam came down and got the right to vote for women, right? इससे पहले नहीं था, right? At least in the Arabian Peninsula, the right to vote came down. Then the right to inheritance was given by the Deen of Islam. The right to marry someone of your choice was given by the Deen of Islam, contrary to what is happening in society today. The right to divorce, actually, औरत को जो right of divorce है वो दीन ने दिया. So if you look at history just from an independent perspective, a lot of people actually genuinely studied history would say that Islam was always ahead of its time. Islam was always ahead of its time. Islam was known to be a progressive religion, right? And I'm using the word progressive in the right sense. And for a lot of people actually, and agar aap us zamane mein one of the acquisitions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you read Seerah, is this, कि अगर वो आज की सेंस में कहा जाता ना, तो they would say that he was too much of a feminist. Sorry for lack of a better word, कि यानी why was he perpetrating all these rights of women? आप खुतबतुल विदा में देखते हैं कि हमारे अभी आखिरी बात जो कह के गए हैं, ठीक है, वो क्या है कि take care of your women because you will be questioned about them, you will have to be answerable about them, right? And then throughout his life, the way he was to his wives, to the daughters, to the daughters of the ummah, and the way he would teach his companions, we sort of lost all of that. We've lost all of that. So that's why when you talk about these things, तो एक बहुत मेजर तबका आज पाकिस्तान में and elsewhere, वेस्ट में, मुसलमानों में, गैर मुसलमानों में वो मौजूद है, जो कहता है कि for a lot of them actually this is news. I mean, I remember teaching Rafi in particular. So
इन जैसे बच्चों में से आधी बातें पता ही नहीं होती, किसी ने सुनाई नहीं होती, है ना? Many our university kids are like that. But then those who even know now through maybe YouTube, through listening to scholars, उन्होंने खुद कुरान पढ़ा, उनको नजर आया कि नहीं, कहीं ना कहीं राइट्स की बात हो रही है. A question that is in their mind is this कि अच्छा चलो ठीक है, even if it is there, ठीक है, where is that reality lived today? वो नजर तो कहीं भी नहीं आ रहा एक्चुअली. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. कि कुरान कह दिया, अल्लाह के नबी ने कह दिया. डू यू सी दैट इन पाकिस्तान? Do you see that elsewhere? Do you see that in the poor, in the elite? You don't see it. Let's be honest about it. ठीक है? So people have started to ask this question कि क्यों practice क्यों नहीं होता अगर हो रहा है? So several reasons for that, and you don't have to judge tonight's talk by what I say at a particular time. You have to listen to the full thing to understand things. And again, it's a perspective. You can disagree with me. You can correct me as well. Yeah, because I'm trying to understand things in different perspectives, and we can agree to disagree, and we can learn from each other as well. Especially जो online सुने, because ये पहली दफा है कि मैं audience के सामने YouTube पे live करूँ. A lot of people called me up saying कि ये बड़ा controversial topic है, बड़ा sensitive topic है, ठीक है? तो ये होता है कि बच के रहें, जुतियाँ भी पड़ सकती हैं, राइट? सो आई होप कि अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत करे, हमें सिंसियर नियत के साथ सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और सही बात समझने की तौफीक भी अता फरमाए. सो यू नो, एक बात याद रखो कि a lot of times when you look at oppression, whether that's oppression of women or any other form of oppression, इससे पहले कि आप रिलीजन को ब्लेम करें, you have to understand one thing, and I talk about religion a lot more. The economic and political reality of that place, of that country, of that region is the reason for that. इसकी मिसाल क्या है? एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसी जगह पे साउथ ईस्ट एशिया, we're all part of साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना? आप यहाँ विमेन ऑपरेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना मुस्लिम और इस्लामिक लेंस उतार दें और आप सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को भी देखें. एग्जैक्टली यही हो रहा है. Look at your Christian community, the very small minority of Hindu community. The same things are happening actually. Domestic violence, abuse, all these things are happening. हाँ, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. That's separate. But it has to do to a certain degree with the economic reality. गरीबों में ज़्यादा है शायद, अमीरों में different category और different तरीके से है, right? So it has to do with culture. It has to do with the political reality, the economic reality. So don't confuse it with religion again and again. But हाँ, religion does play a part as well. ठीक है? What happens there is different. उस पर बात करते हैं. इसीलिए अगर आप यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, इंग्लैंड को देखें, तो वहाँ हालात डिफरेंट हैं बिकॉज उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन हमसे बहुत डिफरेंट है. उनकी परसेप्शन, उनके एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत डिफरेंट है. So a lot of actually Muslim feminists, even if that is a thing, ठीक है, for a lot of people that's not, for others there is, but anyway, तो everybody is sort of free to choose their own choice, ठीक है. People who sort of believe in advocating women rights, आप उसको Muslim feminists कहें या practicing Muslims कहें, जो भी कहें, they've also sort of come to a conclusion that, you know, if you want to ensure the full participation of women in society in terms of rights, hukuk, ठीक है, वो सारा कुछ, it can only be done by reclaiming religion. It can only, especially in a country like Pakistan, you have to reclaim religion, ठीक है? Why? Because एक बात याद रखो, हमारी जो situation in particular, the society for a lot of decades has been patriarchal. Sorry, आज ध्यान आपको कम ही लगेगा, but थोड़ा सा एडमिट है कि it has been patriarchal, कि औरतों को subjugate किया गया, ठीक, औरतों को oppress किया है, और ये हमेशा से रहा है, इधर भी रहा है, बाहर भी रहा है, और ये पूरी दुनिया की एक रियलिटी है. बट जब आप उस पेट्रियार्की को, यानी उस ऑपरेशन ऑफ औरतों को लेजिटिमाइज कर लेते हो रिलीजन से, इट्स अ बिगर डिजास्टर. बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग डिवाइन स्क्रिप्चर एज एन अथॉरिटी टू सॉर्ट ऑफ से कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है. ऐसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि किसी नजरियाती, इस्लामी नजरियाती काउंसिल में किसी ने कह दिया, ठीक है, नॉट के मुफ्ता कि जी औरत को इतना मार सकते हैं कि उसकी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए. So when you sort of say this from a religious lens, imagine the effect that it has. So आपको इफेक्ट शायद नजर ऐसा नहीं होगा कि राफे जाते साथ ही मारना शुरू कर देगा, तो है भी नहीं उसके बाद कोई मारने के लिए. बट होगा क्या कि जब मैं मारूंगा तो देयर समथिंग इन माय हेड दैट विल टेल मी कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इजाजत दी गई है, मेरा मारना जायज था, जिसको आप उर्दू में तावील कहते हैं, राइट? पहला डैमेज वहां से होना शुरू होता है, ठीक है. So a lot of us have actually misused scripture to manipulate it according to our vested interests, unfortunately. And that's evident in gender oppression, that's evident in a lot of other places as well. May Allah guide us from that. So, what you have to understand is the fact that gender is a very sensitive topic.
and you all know we are having this discussion because it is much needed anyways. But the recent incident, may Allah really bless our sister जिनके साथ ये हुआ है, उनको अल्लाह, I hope she's safe, I hope she's fine, I hope her kids are fine, family is fine. अल्लाह ताला उनको बहुत जो है ना आफियत में रखें और इसके बदले उनके जन्नत में दर्जात बुलंद करें और आइंदा आने वाली नस्लों को ऐसी चीज से बचा के रखें. We can make dua and support her, right? But gender is a sensitive topic, and when we grow up, the way we are treated changes, right? The way we are treated changes. आप इसको deny नहीं कर सकते. A lot of you have sisters at home, you've got mothers at home, but you also have fathers at home, and you also have brothers at home. And those of you, none of you is probably old enough, but then you also have daughters and you have sons. I have a daughter and a son. थोड़ी सी treatment फर्क है हमारी उन दोनों के साथ. And when you talk about women, so we are more protective. As believers, this is something that even you see in the Quran, we are more protective. But unfortunately, हमारी वो जो protection है ना, हमें realize भी नहीं होता, वो suffocation में convert हो जाती है. हम protection के नाम पे दूसरे शख्स को suffocate करना शुरू हो जाते हैं, thinking कि हम उसके भले की बात कर रहे हैं, not realizing कि वो बच्ची, चाहे वो आपकी बहन की शक्ल में है, छोटी बहन हो सकती है, आपकी कजन है जो आपसे इन्फ्लुएंस लेती है, आपकी बेटी है, अब वो आपकी बातों से, चाहे वो इन थियरी सही भी है, राइट, दैट इज नॉट द टाइम टू से व्हाट यू आर सेइंग. सही बात सही मौके पे कहनी चाहिए. सही बात गलत मौके पे भी एक्चुअली फिट नहीं होती, बिकॉज आपका मकसद सही अपने आप को साबित करना नहीं है. मेरा आपका मकसद ये है कि अगला हमारी बात से एंगेज होकर सही इस्लाह कर सके. ये हमारे नबी की सुन्नत, राइट. So a lot of times, one extreme of the spectrum is this: rather than protecting our women in the form of daughters, mothers, wives, general community, society, we suffocate them. And at other times, there is another extreme of the spectrum. हम उनको इतना liberate कर देते हैं कि that itself is a disaster. तो इस्लाम आपको, हमारा दीन इन दोनों spectrums के बीच में लाने की कोशिश कर रहा है. That is why कुरान ने कहा ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, that men are caretakers of women, जो आया जिससे मैंने शुरू किया, right? So you have to ask yourself a question, right? कि why is it that women today, पाकिस्तान में हमारी माएं, बहनें, बेटियां, और आप लोगों की बात करूं पढ़े लिखे घरों से, ठीक है, are being relegated to teachings that predated the Islamic era? क्यों ऐसे हो रहा है? यानी हम वो प्रैक्टिसेस और वो हरकतें करना शुरू हो गए हैं, ठीक है, जो हमारी फेथ से पहले हुआ करती थी. हमारी फेथ में थी, उससे पहले जो हम प्रैक्टिसेस, जाहिलिया की जो प्रैक्टिसेस थी, हम उसकी तरफ जा रहे हैं. Why do we not look at the fact that economically, financially, emotionally, even militarily, you have voices in this ummah, you have examples in this ummah during the time of the Prophet and in the first few generations in particular, जो इन सब रोल्स में आगे थे. खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फाइनेंशियली स्पीकिंग, समझते हैं कि औरत तो पैसे कमा ही नहीं सकती या उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है. For almost an infinite time, she supported Islam like anything. She supported the Prophet like anything. And there was no sort of sharam in that by the Prophet, because he would take that money and give it to the ummah. She was never shunned by the Prophet post their marriage कि कारोबार को खत्म कर दो. रोल्स चेंज होती हैं जिंदगी में, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, but nobody wants to look at that. The tremendous role that Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा has had in terms of knowledge, यानी हमारे पास दीन का एक मेजर हिस्सा उनके जरिए से है. एंड आज वही उम्मत औरत की तालीम के बारे में जो है ना दरवाजे बंद कर देना चाहती है. आपके मेरे घरों में ये वो है कि जी बेटियों को पढ़ा के क्या करना. तो इसका मतलब है आपने कहीं तालीम को भी जो है ना बिजनेस सेंस में लेना शुरू कर. तालीम तो शऊर पैदा करती है अगर सही तालीम हो. तालीम तो you teach a mother, you teach generations. So who's causing this oppression? You and me, our fathers and mothers. Forget about what some rapist has done. We'll come to that as well. But the problems are worse than this actually. Because most of you know, मैं तो universities में पढ़ा रहा होता हूँ. We come across girls who would come and personally say this to us कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम एक ट्रैक पे चढ़े थे, हमारा एक शौक है. With all due sincerity, भूल जाओ वो पर्दा करती है या नहीं करती, बिकॉज उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से. पर्दा इंपॉर्टेंट है, तो कोई डिनाइल ही नहीं है, बट माँ बाप नहीं करने दे रहे. बीच रास्ते एक बच्ची सेकंड ईयर में माँ बाप ने फैसला कर दिया बस एक हफ्ते बाद तुम्हारी फलां शख्स से शादी हो रही है, दैट्स इट, पीरियड.
I've had women from LUMS, BNU, UMT, across the board come up to me and confess in these sessions, take a student saying these things. So what is this really how the Prophet ﷺ treated his daughters? Is this really how he raised Aisha radhiyallahu ta'ala anha? Because Aisha radhiyallahu ta'ala anha was raised in the house of the Prophet. 9 साल की थी ना. I gave a full session on her age, सीरा में. People who have a problem with that सुन सकते हैं. Is that the teaching of the Prophet? इधर हमारी सुन्नत को अप्लाई करने की सेंस किधर चली जाती है? It's just amazing. कि हम वो जो हमारे नबी का घर का मुआशरती निज़ाम है वो क्यों नहीं लाना चाहते? क्या मेरे नबी सिर्फ खुलिया छोड़ के गए हैं? क्या वो और किसी चीज की तरफ बात नहीं कर रहे? Right? And I want you to look at another thing as well and very clear on this. कि देखो यार, ये जो मसला है ना कि हम किसी के जाहिर की बेसिस पे उसको जज कर देते हैं. जैसे अभी इस इंसिडेंट में भी हो गया कि हम करते ये कि कुछ गलत होता है और बजाय कि उस गलत का रिस्पॉन्स दें, हम जो विक्टिम है उसके अंदर गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं. Right? Somebody rapes somebody hurts somebody, गड़बड़ होती है, यूनिवर्सिटी में हो, मोटरवे पे हो, किसी भी जगह अल्लाह हिफाजत करे, rather than addressing the issue, कहते हैं इसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे इसलिए ऐसे हुआ. That's common Pakistani way of doing it. ठीक है, वो कोई उठ के यूनिवर्सिटी का बच्चा भी कह सकता है, वो आपके घर पे भी कोई कह सकता है, वो कोई मौलाना साहब भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है. मुझे आप सीरत में से ये ढूंढ के लाके दिखा दें. Do you really think कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर औरत बापर्दा हो गई थी immediately? You really think every single woman was doing it? Every single woman? या चलो, let's assume everybody was doing it. कुफ्फार तो ऐसे थे ना. हम don't we believe in the fact कि सहाबा से भी गलतियां हुई, अल्लाह ने लेकिन उनकी माफी का ऐलान कर दिया, तो हम सहाबा के मकाम पे there is no doubt about that. Because we believe in the fact that the Prophet was masoom anil khata, everybody else is imperfect, despite their maqam. Do you find the Prophet judging people like this? Do you find him making these comments? कुछ अहादीस तो रिकॉर्डेड है ना कि लोगों ने आके, औरत ने, मर्द ने, you have famous अहादीस, अपने जिना के लिए टेस्टिफाई किया. हमारे नबी का रिस्पॉन्स क्या है कि वो उनको हद जिना से भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं. ये तो सवाल ही नहीं है कि उसको कहा हो कि देखो तुमने ऐसे कपड़े पहने से ऐसे हुआ, देखा हमने मेरी बात नहीं सुनी ऐसे हुआ. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कोई सुसाइड करता है, हम खड़े हो कहते हैं कि पागल है, इनको 2 थप्पड़ लगाओ ये सीधे हो जाएंगे, rather than recognizing कि इशू क्या था. It is not easy to take one's life. कोई रेप करता है और होता है, rather than recognize कि रेपिस्ट के माइंड में क्या चल रहा है. Unfortunately, it's a huge thing. How do you even do that in front of kids? It's something I have not been able to fathom. मैं एक हफ्ते से सिर्फ इस बात पे disturbed हूँ कि everybody is looking at the fact कि किसके साथ ज्यादती हुई है, वो तो आप सोचो तो बस दिल दुखता है. But जिसने की है, what level has he stooped to is beyond comprehension. And you know what? Trust me on this. There are hundreds of thousands of people in this country who are doing this. सबको पता है, ये तो सिर्फ 4 चीजें जो रिपोर्ट हो जाते हैं. स्पेशली जितना आप इकोनॉमिकली नीचे जाते हैं, बेटियों के साथ कर रहे हैं, भाई बहनों के साथ कर रहे हैं, आप गरीबों के घर देखें कि कमरे में 8-8, 10-10 बच्चे घुसे में. व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग देयर? हस्बैंड एंड वाइफ्स हैव नो लाइफ टू देमसेल्व्स बिकॉज़ फिजिकली जगह नहीं है प्राइवेसी के लिए. कजन्स एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और क्या क्या नाम चीज हो रही. नोबडी थिंक्स अबाउट दैट. तो नहीं ना कि एक इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया तो हम तभी, बिकॉज वो हमारे लिए रिलेटेबल है. बट एज बिलीवर्स हम तो हर एक की खैर चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी में हो, सड़क पे हो, किसी के घर में हो. वी वांट टू फिक्स द इशू, वी वांट टू अंडरस्टैंड सब. ठीक है. So it comes back to one part of it, and I want you to understand this first. Why is it that if Allah created us equal, and He created us equal, okay, why is it that women then are not equal in the eyes of the society? Right? I've chosen my words very carefully. I have not said in the eyes of the men, in the eyes of society. Because it's very interesting. The more you grow up, you realize that men are not only oppressing women. मर्द तो कर ही रहे हैं, women themselves are oppressing women. The famous Saas Bahu example is one that does not need explanation, right? So one reason for that, which I explained the universities, is the fact that
because women have actually been systematically removed from society in the name of calling them domestic workers कि ये तो घर का काम कर रही होती हैं, right? तो people think कि इनकी कोई contribution है ही नहीं. It's like a free maid you've gotten. ये माँ की शक्ल में, फिर बहन की शक्ल में, फिर बीवी की शक्ल में और फिर बेटी की शक्ल में. यही रोल तो यही है ना, घर में तो यही रोल है. या माँ खिदमत कर लेगी, या बहन कर लेगी, या बेटी कर लेगी, या बीवी कर लेगी. तो घर की खादिमा है. Unfortunately उसको भी नहीं करता. You know, political science does a very interesting thing. And they say कि because and then men are authoritative. Why? Because of the fact कि मैं घर चला रहा हूँ. आज भी जब तलाक हो तो लोग हंस के कहते हैं कि हम तो लगे वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो फिर शादी हो जाएगी. And I am the one who brings money to the house, right? So एक पैसा है जो कि दुनिया का सबब है हमारी ज़रूरत, हमारे सुकून के लिए. एक और चीज़ है कि हमारा सुकून जो है ना सिर्फ पैसे में नहीं है. पैसा हमें असबाब के लेवल पे चीज़ें देता है, बट अगर आपके पास घर नहीं है ना तो सुकून नहीं है आपके पास. एंड याद रखो, घर औरत से बनता है. दैट्स व्हाट दे कॉल इज सोशल रिप्रोडक्शन. कि the reason me and you are sane, and think about it, the reason me and you are sane today and we can function as students, as businessmen, as employers, as employees, ठीक है, is because of the fact कि 9 to 5, 9 to 6 जॉब के पास बाद हमारे पास रात को जाने को घर होता है जहाँ एक माँ, बेटी, बहन या बीवी हमारे ख्याल रखने को मौजूद है. तो वो जो 5 to 9 का बाकी साइकिल है ना, उसमें वो हमें री एनर्जाइज कर रहे हैं. If we're bringing in 10,000 rupees, which is tangible, they're giving us intangibles जो कोई दे नहीं सक रहा. And that intangible is their role in society. दोनों लाजिम मलजूम है. And अगर आपने इससे पहले ये नहीं सोचा तो आप सोचो कितने लोग ये बात कहते हैं, you're not performing well at work, आपका टेस्ट बुरा हुआ, आपका जीपीए अच्छा नहीं आया, somebody will ask you what's up, आप कहते हो घर पे हालात ठीक नहीं. तो घर के हालात का क्या ताल्लुक है आपके जीपीए से? यूनिवर्सिटी तो वैसे ही है, ऑफिस तो वैसे ही जा रहे हो. तो क्या बात समझ आ रही है कि जब सुकून नहीं होता ना, जब घर पे टेंशन है, जब वो स्मूथ नहीं है, वो तो आप खराब हो जाते हैं. इसका मतलब है वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर वुमेन. वी नीड आवर वुमेन. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट आवर वुमेन. दैट्स अ रियलिटी. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amma Khadija radhiyallahu ta'ala anha passed away. The entire year has been called Amul Huzn, the year of grief. इतना दुख था मेरे नबी को, because 4 बेटियां पीछे छोड़ गई. एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, financially, emotionally, in every sense of the word. And the Prophet took time to recover. And that same Prophet is rejected by his society. पूरा मक्का उनको literally बाहर फेंकने तक आ जाता है. And there is no Amul Huzn otherwise. ताइफ में पत्थर पड़ रहे, पर हमारे नबी फिर भी जो है ना माफी की दुआ करो. खदीजा के जाने पे पूरा साल गम का है, जस्ट टू मेक अस रियलाइज कि कितनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया. बट नहीं है, बट मसला पता क्या है कि वो चेंज आ ही नहीं रही. You know, they say something in English that you can't build a straight house on a broken foundation. So the first half an hour that I've spoken to you is about recognizing that we have a broken foundation. Have a broken foundation. I talk about things कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, but इससे पहले कुछ और चीजें. You know, how can you change this? आपके जुमे के खुतबे इस पे होने चाहिए. Unfortunately हमारे मुल्क में जुमे के खुतबे relevant बातों में नहीं होते. अब I don't want to come out and blame the ulama for this. I want to blame you people. Because मेरा कंसर्न आप है, उलमा नहीं है. उलमा ने जो अच्छे काम किए वी वैल्यू देम फॉर दैट. याद रखो, उलमा के बगैर भी हम इससे बुरे ही होते, इससे अच्छे ना होते. इट्स वेरी इजी टू ब्लेम एवरीबॉडी. बट माय इशू इज कि द उलमा एक्चुअली जनरली स्पीकिंग इल्ला माशाल्लाह आर नॉट इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी. हमने उनको साइडलाइन कर दिया है. फिर कुछ और भी काफी सारे इश्यूज, दैट्स अ सेपरेट डिबेट. बट व्हाई डू वी नॉट टॉक अबाउट दीस थिंग्स? So, but it's also interesting, it's very convenient to shift blames on the scholars. And I'm not trying to defend them. Trust me, सबको पता है कि जब मैंने जो कहना है वो कह देना है. I want you to recognize something. मुझे, in fact, my sister-in-law messaged me
कि somebody is asking कि मौलाना तारिक जमील ने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं, ठीक है. मैंने भी एक दो स्टेटसेस पढ़े व्हाट्सएप की courtesy के, लोगों ने कुछ लिखा हुआ था. एंड ठीक है, एक बात सही, कोई भी पूछ सकता है, राइट, यार उन्होंने क्यों कुछ नहीं, आई डोंट नो, शायद अब कह दिया हो, बट आई जस्ट अज्यूमिंग, लेट्स अज्यूम उन्होंने नहीं कुछ कहा, एंड शायद रियलिटी भी यही है. सही है. So I really appreciate him for the great work that he's done in terms of uniting the ummah. Right? So I replied back to her. I said, जो आपसे पूछ रहा है उसको एक बात कहो, are you going to be questioned for that कि मौलाना तारिक जमील साहब ने क्यों नहीं कुछ कहा? ठीक है, हम मानते हैं उनको कहना चाहिए था, मैं खुद कहता हूँ कहना चाहिए था, आई डोंट नो क्यों नहीं कुछ कहा. हो सकता है इसलिए कुछ नहीं कहा कि बीमार हो सकता है ना, हो सकता है प्राइवेट सर्कल्स में कहा, राइट, हो सकता है कह दें. It could be tens of reasons, but I don't want to do that. I want to say कि उन्होंने नहीं कहा does not even, वो कहें या ना कहें मेरे लिए does not make a difference. मैंने क्या किया है, जो ये पूछ रहा है ना तुमने क्या कहा है, because if you go playing like this कि इसने क्यों नहीं कुछ कहा, then there are 10 places where I could ask you कि आपने क्यों नहीं कुछ कहा. वो बहुत सारी जगह हम कुछ नहीं कहते just because we condemn it in our heart, but we're busy doing other things. और ये ज़बान स्किप जाता है. अभी सहाबा पे इतना बड़ा इशू बना हुआ है, ठीक है, जिसपे a lot of scholars are saying things, ठीक है, तो we all believe in the fact कि सहाबा की sanctity अपनी जगह को उनको गालियां नहीं दे सकते. आप में से किसी ने कुछ कहा है, मैंने कोई बयान किया उसके ऊपर, not because I disagree, but because I'm doing other things. तो ये बड़ी convenience है कि we want to, हम unfortunately because of social media a lot of people want to highlight something interesting which makes them famous. कि जी मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका कोई किसी के पास जवाब नहीं. Whether somebody says it or not, what have you done to sort of put an end to this? And I will come back to this at the end. What have we done? I want you to recognize what we have done, and most of you will be able to relate to that. So the question is, can we provide an alternate narrative, right? Can we sort of make people realize that women's rights and religion, and in particular Islam, are not mutually exclusive? They go hand in hand. They go hand in hand. So women have to stop being silent, and men have to stop being silent, more importantly. Men have to start saying and standing up for the fact that we want to end oppression. It is not about being a feminist. It is about following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, period. हमारे नबी का तरीका है, हमारे नबी का रास्ता है. एंड कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी तुम्हारी जिंदगी है. इफ यू थिंक कि दिस इज समथिंग कि जिसके बगैर तुम और मैं रह सकते हैं, कल को योर डॉटर कुड बी अ विक्टिम. In any sense of the word. In any sense of the word. She could find an oppressive husband. May Allah protect her and your and my daughters, our sisters are. So it's because, and what is the Prophet saying in the hadith? And I was thinking about this today. कि Alhamdulillah, all of you, the fact that you are here, वैसे हम COVID के बाद बहुत से बाद 6 months, ठीक है, it's been a very long time. तो probably the topic is brought you here. वैसे भी आते थे, ठीक है. So, you know, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन जो है वो एक जिस्म की तरह है, किसी एक को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है. तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतना ईमान है कि किसी को तकलीफ हो तो वो हमें महसूस हो रही है, हालांकि none of you knows that woman, none of you know the children. तो इतना ईमान है because there are people out there who are desensitized. Unfortunately, like one of our officials who came out saying कि जी क्या वो अकेली क्यों सफर कर रही थी, वो अकेली क्यों सफर, अल्लाह के बंदे, इज दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू समथिंग? वो अकेली क्यों सफर कर रही थी? मैं आपको आगे एक हदीस बल्कि कोट करता हूँ जिसमें, चलो when it comes I will show to you which will make you realize something very interesting. You know, Allah Ta'ala has given a maqam to women. जब अल्लाह ने औरत को तख्लीक किया तो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अल्लाह ने बनवाया, तमाम मलाइका मौजूद थे, एंड वो जिस्म इट वाज नेकेड, राइट. वो पुतला तो पुतला होता है, राइट, इट हैज नथिंग, उसमें कोई शर्म हया की चीज नहीं है, बट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उनमें रूह फूंकी, फिर उनको बनाया. देन द टर्न ऑफ अम्मा हवा केम, राइट. शी वाज मेड, व्हेन शी वाज बीइंग मेड, आदम अलैहिस्सलाम वाज पुट टू स्लीप, द एंजल्स वर पुट टू स्लीप, एंड व्हेन दे वोक अप शी वाज देयर. इतना बाहया और खूबसूरत मुज़य्यन तरीके से अल्लाह ने औरत की तख्लीक फरमाई है. दिस इज ऑनर, दिस इज डिग्निफिकेशन ऑफ सम. हालांकि आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, अम्मा हवा इज नॉट अ प्रॉफिट,
But this is the value that Allah is putting. और दुनिया की सबसे हसीन औरत कौन है? अम्मा हवा, the first woman to be created. And this is message. Allah ने औरत के अंदर हुस्न पैदा किया है, but God wants her that to be protected, right? बहनों के बारे में हदीसें पढ़ लो, बीवी के बारे में पढ़ लो. नबी हदीस क्या है? बी वाइफ के बारे कि तुम में से जो चाहे कि उसका घर जन्नत में हो, नहीं, उसका घर जन्नत में मेरे घर के करीब हो, तो उसको चाहिए वो दो चीजें कर ले. पहली चीज, अपने अखलाक अच्छे कर ले. So be nice to people. So people means what? Everybody. So amazing. The second thing is what? कि बीवी से अच्छा सलूक करे. Isn't it amazing? कि पहली चीज भी वही है, अगर अच्छा अखलाक है तो बीवी उसमें आ जाएगी. But the Prophet is reiterating because he knew what? 2020, बिलाल, राफे, अरसलान, अबू बकर क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को व्हाट्सएप पे वाइफ जोक्स भेज रहे होंगे. यही कर रहे होते हैं, women jokes. मैं कर रहा होता हूँ यार, मैं आपको बता रहा हूँ. I feel ashamed of that. I remember when I was teaching their batch, ये बात हुई भी थी. We all tend to do that. Sending wife jokes, sending women jokes. It's condescending for a particular gender. It might be light for us, but it's been too much. आप किसी सरदार से करें ना सरदार जोक, वो सर फाड़ देगा आपका. तो किसी पठान के सामने करो 3 दफा जोक उसके बारे में, देखो फिर खान साहब क्या करते हैं आपके. Because light humor is there. We can't recognize that. But whenever there is humor, you transgress a limit. तो क्या कमाल है, शरीयत का एक बड़ा हिकमत वाला हुक्म है मुताद्दिद शादियों का, इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, और फिर बच्चियां हो, सब कुछ हो, 4 वाइफ से एक जोक है. हम कर रहे होते. मैं तो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा हूँ. We're all doing that. And the Prophet never joked about that. Never ever. Right? So rather than, because time is less, so what I want you to say is this, कि एक abuse ये है सोसाइटी में जो हमेशा से रहा और अभी भी हो रहा है. वो क्या है कि women have not been given their status. We've not given them their status in terms of the honor that they deserve, the maqam that they have. हम नहीं recognize करते, अपने घरों में ही नहीं कर रहे. अब मुआशरे को छोड़ दो, हम में से हर कोई अपने घर में अपनी माँ को वो मकाम नहीं दे रहा उसका होना चाहिए, बीवी को, बेटी को, बहन को नहीं दे रहा. और उससे बड़ा अब्यूज पता है क्या है? कि हम एक, ये तो दिस वाज रिलेटिवली स्मॉलर, उससे बड़ी चीज ये है कि फिजिकली स्पीकिंग एंड इमोशनली स्पीकिंग वी स्टार्टेड टू टॉर्चर देम, मोलेस्ट देम, ओप्रेस देम, रेप देम इन द वर्स्ट ऑफ मैनर्स. यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्वे किया and they interviewed thousands of women in Cairo, which is known to be an Islamic place. 99% of the women, out of thousands that were interviewed, said and confessed that they'd been harassed, fondled, or maltreated in public at a particular time or not. ये अमेरिका की साजिश है, मुसलमान मुल्क है ना. पाकिस्तान में करके देख लो, ask people around, किसी यूनिवर्सिटी में करके देख लो, चाहे वो कितनी लिबरल क्यों ना हो, कितनी कंजर्वेटिव क्यों ना हो. This issue is actually beyond the fact कि वो पर्दे वाली है या नहीं. It's beyond the fact. मुझे अच्छी तरह 2008 याद है, लम्स, ठीक है, my friend sitting Islamic studies जैसे हम पढ़े थे, ठीक है, the women who were our TAs full अबाया होता था, full अबाया, ठीक है. And I remember a couple of my friends saying कि यार ये जूते बहुत अच्छे हैं, ऐसे भी फिट हो. What do you do with this mindset? It's not even funny. That's the sad part. We find it funny, and I've also laughed over this. It is extremely sad. It shows the level that we've stooped to. Every single one of them, وَاتَّقُوا يَوْمًا, कि डरो उस दिन से, तुरजाऊन फीही इलल्लाह, जिस दिन अल्लाह के पास लौटाया जाएगा, क्योंकि उस दिन हर एक से सवाल किया जाएगा for what we've done. So I will be answerable for this laugh that I had, for the sneezy comment that I made. Because it all adds to the frustration, it all adds to what you see in society. It's very, हम सब इधर, all of you, tell me something and be honest. You came here not thinking that you were part of the cause of what has happened. We have this sense of holiness about ourselves कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बहुत बेहतर है, everybody think मैं नहीं हूँ, हालांकि हमने भी किया. We are part of this oppression. One way or the other, we are all sort of doing that. We are all sort of doing that. That's something that we have to understand. So let's come back to the time of the Prophet.
and I want you to see through this hadith that पता नहीं कितनों ने क्या सुना है नहीं सुना, that हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, देखिए मफ़हूम बता रहा हूँ वाक़या का, and you can get this hadith. A woman was going for फजर सला. This is the time जब औरतें नमाज के लिए जाया करती थी. You know फजर का वक्त अंधेरा होता है. हाँ तो फिर वो लेट होती है because the Hanafi mazhab has it in that sense कि इसमें इख्तलाफ है कि जल्दी पढ़नी चाहिए या लेट पढ़नी चाहिए. And a man overpowered her. फजर पढ़ने को औरत जा रही है और ये मदीने की बात हो रही है. A man overpowered her, ठीक है. Obviously probably मूवी बंद कर दिया सब कुछ, and despite her trying, she was raped. ठीक है. When he left, तो उन्होंने शोर किया. You were talking about a sahabi and a sahabi. You have to recognize the man who's done it is a Muslim. ठीक है. So उन्होंने शोर वगैरह किया. The Sahaba gathered and they asked what happened. She said what had happened. They went around searching for somebody and they found a man. ठीक है. मशकूक एक शख्स मिला, उसको लेके आ गए and basically उससे पूछा कि उस औरत से पूछा कि क्या ये शख्स था. तो because obviously it was dark and अब तो 1400 साल पहले स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही. So you have the natural light only. सुबह का वक्त था. तो she looked and she said हाँ यही था. Right. So this man was taken to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इंटरोगेट करना शुरू किया. Did you do it in a sort of a stern manner? ठीक है. And he kept saying नहीं, I didn't do it. Again, साहब मजा लग गया. And he kept denying कि मैंने नहीं किया. And the Prophet was asking him, औरत से कोई बात नहीं हो रही इस वक्त. And then a man stood up from the majlis and he said कि या रसूलल्लाह उसको छोड़ दे, मैंने किया. So it was a case of mistaken identity, but so the original sort of person himself stood up, and then that person क्या कहते हैं, तो इस बंदे को अल्लाह के नबी ने, जिसको पहले एक्यूज किया गया था, इसके साथ हमारे नबी ने इसको अपोलोजाइज किया and he was asked to let go because ये मासूम था. ठीक है. ने औरत को बुरा भला नहीं कहा कि तुमने गलत गवाही दी या तुमने गलत, because it was a natural thing, ये हो जाता है. ठीक है. because it's a huge thing that wrong. उसको भी भेज दिया गया और अल्लाह के नबी ने बल्कि उसको कहा कि गो यू विल बी फॉरगिवन. नहीं, ना तुमसे बात का सवाल है कि तुमने गलत बंदे को आइडेंटिफाई किया, ना इस बात का कि जो फिजिकल एक्ट हो गया बिकॉज इट वाज नॉट कंसेंशुअल, राइट, इट वाज फोर्स, देयर इज नो सिन ऑन यू, लेट्स गो. और इस तीसरे शख्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया. ही वाज एग्जीक्यूटेड. सो देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ विजडम इन द स्टोरी. द फर्स्ट थिंग इज दिस, that think about it, no matter what place you're in and how many laws you have, crime will take place in society. एक ये भी बड़ा मसला है. हम डिनाइल में चले जाते हैं क्यों जी, देखिए पाकिस्तान में हो रहा है. सर आप जिधर मर्जी चले जाएं, अब लोग रियासत मदीना के मजाक उड़ा रहे हैं. तो असल रियासत मदीना में हुआ है, आप क्या रियासत मदीना का मजाक उड़ा रहे हैं. डोंट यूज दिस टू मेक पॉलिटिकल स्कोर्स. दिस हैपेंड व्हाइल द प्रॉफिट वाज विद द सहाबा. इट वाज डन. Right? So what do you do with that? अच्छा, interestingly, what do you think? उस औरत का जो फजर की नमाज पढ़ने निकली है, कैसा लिबास होगा? कौन सा सेंस इस्तेमाल करने? Do you think she was wearing a provocative dress? In any way, नाउज़ुबिल्लाह, तो सहाबियात की बात करें, she is probably dressed in the best of manners. ऐसा पर्दा जो मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते. And yet it happened. वो सीसीपीओ साहब होते तो वो कहते जी महरम के बगैर जा रही थी. अनफॉर्चुनेटली, व्हाट डिड द प्रॉफेट आस्क? पूछा हमारे नबी ने कि क्यों अकेली गई थी. आप हदीस पढ़ लो, खुद मशहूर है, सही हम खुद पढ़ लो. अल्लाह के नबी ने उस औरत से क्या पूछा कि आप अकेली क्यों थी, आपका महरम किधर था, कि क्या हो रहा था, आपको किसने कहा था फजर पढ़नी है. यू डोंट फाइंड दैट कॉन्वर्सेशन. The Prophet is concerned with giving justice to a woman, and in fact, if only anything, he tells the woman कि आपको माफ कर दिया गया, आप पे कोई blame नहीं है, right? What did that woman do? She made a scene, which is very interesting. She made a scene कि she tried her best रोकने की, नहीं हुआ जब बात. तो when he left her, so what did she do? There is no honor in protecting her. ये बोलो कि जी हमारी इज्जत का सवाल है, ये बताने की जरूरत नहीं है, फलाना नहीं, मिट्टी पाओ, ये करो. She went out in public and said this. And कितनी अजीब बात है, nobody in Medina Munawwara reprimanded her for doing so. यहाँ एक मसला क्या होता है कि पहले औरत ही में जुर्रत नहीं है कि वो बता सके.
बिकॉज, और वो जुर्रत क्यों नहीं है? बिकॉज मुआशरे ने ये कर दिया है. डोंट ब्लेम द वुमेन फॉर दैट. मुआशरे ने इतना टैबू कर दिया, राइट? दूसरी बात ये कि जो थोड़ी सी जुर्रत करती हैं बताने की, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल in the form of youngsters, scholars, non-scholars telling her, क्या हो गया तुम, ये बताने की जरूरत ही नहीं. क्यों? ये जी दीन का हर्ज होगा. ये दीन का हर्ज नहीं हो रहा था. जिस जिस चीज ने सही बुखारी और मुस्लिम और सहा सित्ता में जाना है, ठीक है, उससे तो दीन का हर्ज नहीं हुआ. मेरे नबी या सहाबा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि नहीं मत बताओ इसको, मिट्टी पा दो, तो हदीस भी रिकॉर्ड हो जानी. आपकी नजरों में इस्लाम की अजमत कम हो गई है सहाबा की इसकी वजह से. For some of you, this might be the first time you're hearing this. बट आप क्या आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये तो we have to be honest. मुंह में सब हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता. Nobody stopped from reporting this. So do not stop people from coming to the front when they've been victimized. Let them speak the truth, for God's sake. Don't care about what people will say. Just care about what Allah has said. Stop caring about it. We all tend to do that. Your parents will tell you to do that. And the day you become a parent, तुम यही हरकतें करोगे कि लोग क्या कहेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि हिकमत छोड़ दो, हिकमत जरूर करो. कभी कुछ इंफॉर्मेशन डिले करने में बेहतरी होती है, कभी किसी बात का अंदाज डिफरेंट होता है. बट फॉर गॉड सेक स्टैंड अप, राइट? एंड देन दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. इस पे बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी शो करते हैं. नो लॉ, नाइदर इस्लामिक नॉर वेस्टर्न, विल गो ऑन अ सिंगल टेस्टिमनी. देखो द प्रॉफिट सिंगल टेस्टिमनी से ना ये बनता है. अल्लाह के नबी ने एग्जीक्यूशन का हुक्म नहीं दिया. आज ने इंटेरोगेशन शुरू की. और हुआ ये कि देखो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो इंटेरोगेशन वो जो सॉरी एक्यूजेशन थी वो गलत साबित हो गई, वो बंदा नहीं था, राइट? सो बट द प्रॉफिट डिड नॉट इवन से व्हाट अनफॉर्चुनेट. मैं उस दिन किसी की क्लिप सुन रहा था, कोट एंड कोट वन ऑफ द स्कॉलर्स, पुरानी थी बट इट वाज सो डिस्टर्बिंग कि, और जान के ना फिर ऊपर से उस न्यूज एंकर ने भी उसको प्रोवोक किया कि जी जब ऐसा कुछ हो जाए तो 4 गवाह होंगे तो फिर कुछ करना. तो उन्होंने कहा जी फिर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें? ठीक है, उनका खामोश रहे, फजूल में शोर करने की कोई जरूरत नहीं. अल्लाह, are you out of your minds? Somebody has been raped. अगर वो जो 4 गवाह और वो सब कुछ है, एक तो उसको समझो जाके वो क्या है. दूसरी बात ये, that for that particular punishment, any other punishment in the world can be done. इसमें बहुत बहस हुई है, डीएनए टेस्टिंग आ गया है, अब फोरेंसिक्स है, कैमरास है, सर्वेलेंसेस है कि आपको पता चल सकता है. And you can give any punishment that the court decides. How do you say this then कि नहीं जी ये चीज ऐसे है, ये फलाना है, ये वो है. So you have to sort of understand the woman should not remain silent, but the legislative body has to look for other evidence as well. It has to look for other evidence as well. वो भी अपनी जगह है. ये भी एक क्रिटिसिज्म गलत है इस्लाम पे कि नहीं जी हम होते, तो there is a balance in that, right? And then the talk of the fact कि because ये बहुत सारे lectures भी हुए, लोग कहते हैं hang rapist. फिर भी clarify करना चाहता हूँ that the punishment for consensual zina and rape is different in Islam. ये एक चीज नहीं है. Contrary to what a lot of people think. Rape in Islam, most scholars, comes under the category of war crime, जिसको आप हिराबा कहते हैं. सूरह माइदा में इसका जिक्र है, ठीक है? Because it's part of war crime, which means कि you are terrorizing somebody, you're terrorizing people through this. Because when you have the physical relationship in a private sort of a sense, that's a different thing altogether. उससे आप किसी को terrorize नहीं करें, especially when it's consensual. That's why we are all disturbed, because our sister in this country, right, who's probably like us, has been terrorized, and because of that, everybody is disturbed, right? पूरा family setup उसका हम सब. So that's why it comes under war crime, जिनको हिराबा कहा जाता है. तो कुरान के बारे में क्या कह रहा है? Multiple levels of punishments in the Quran. I'm not saying this. जाके पढ़ लो. The first is what? Execution. कत्ल कर दो. वही हमारे नबी ने किया. The second is what? They can actually be crucified. इसमें खैर इख्तिलाफ है, ठीक है? But the general position is this: the majority says what? कि you execute first and then you can hang the body, ठीक है? For it to act as an ibrat, right? For it to act as an ibrat. And it stuns me that somebody was saying, I heard in a couple of other places, people are saying कि नहीं जी ये तो नहीं कर सकते because फिर आप tourism कैसे चलाएंगे?
I just don't even understand people. किसने कहा है कि एयरपोर्ट पे बॉर्डर कंट्रोल पे खड़ा करें? आपको लगता है वैसे भी टूरिज्म होगा उस मुल्क में जब लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे रेप हो रहे हैं? इससे टूरिज्म हो जाएगा ना, लेकिन हैंग करेंगे तो फिर नहीं होगा। टूरिज्म चलेगा जब हम चीज़ों को डेवलप करेंगे, अखलाक अच्छे होंगे, मेहमान नवाज होंगे और हराम हरकतें बंद कर देंगे। इसका कोई ताल्लुक नहीं है टूरिज्म इंडस्ट्री से, और अगर है भी, वी कुडंट केयर लेस बिकॉज वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द ऑनर ऑफ अ सिस्टर रादर देन द टूरिज्म इंडस्ट्री दैट यू वांट टू डेवलप। Yes, that's the reality. Then the third option is what? You can amputate them from opposite sides. हाथ, right हाथ काटो, उल्टी टांग काटो, so that it acts as a mark. So that if you don't execute them, तो पता हो ये categorically कि this is a rapist. All this is there in the Quran. And in addition to that, the scholars believe that there has to be a financial penalty, which has to be paid to the victim. Not because कि पैसे से कुछ उसको तसल्ली हो जाए, but it has to be there so that burden is also there. But there is no mention of any of this. हर तरफ से खामोशी है। बेस्ट कोशिश ये है कि हम भी कोई कूल सा मैसेज लिख के व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करें ताकि हमारे वाले स्टेटस लोग आगे फॉरवर्ड करें। यही है, फ्लायर बना लेते हैं इसे हैंग द रेपिस्ट पे। ये नया वो है, देखिए कि हमारे इंस्टीट्यूट का फ्लायर हो, हमारे उसका वो हो। So we are on a very different page altogether. हमारे नबी ने he forgave that lady, right? He was kind to her. So I don't know how much longer I can go because बातें तो बहुत सारी है, but I usually end by 9, but 10 minutes हो रहा है, आप इजाजत दें। एक चीज जो मैं आपको, because I want to wrap this up in a sense, is what कि I want you to understand कि अब, now that we've talked about this, forced and consensual is different, ठीक है? You know, if you willingly comply, so for example, it can be forced, ये भी बात आप थोड़ी सी अहम समझ लो ताकि somebody forces you to do something wrong, ठीक है? And the first step is what कि आप रोकने की कोशिश करते हो। Unfortunately, एक तबका ऐसा भी है, with across the board, women, men, children, ठीक है, जो कोशिश ही नहीं, they just give it immediately. If you do that, then कुछ sin आपके ऊपर आता है, फिर कुछ sin आपके ऊपर आता है या आ सकता है। तो you have to recognize something कि आपको रोकना है, ठीक है, आपको रोकना है। अच्छा, रोकना इतना भी हो सकता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कितनी जगह वाकयात हदीस में भी और अदरवाइज भी कि when men would try to approach women, they would say just this one line कि fear Allah, इत्तकुल, अल्लाह से डरो, एंड लोग पीछे हट जाया करते थे। अल्लाह के नाम में एक ऐसी बरकत है कि एट टाइम्स वो आपकी, बिकॉज करने वाला भी अक्सर मोमिन होता है, कभी कभी आपका वो जो एक तड़प से जो चीज निकलती है ना, आप फिजिकली शायद किसी को ओवर पावर नहीं कर सकते अगर वो आपके ऊपर आ रहा है, बट बिकॉज हमारी जिंदगी से अल्लाह ताला वैसे ही निकल गए, तो वी फॉरगॉटन कि एक चीज अल्लाह के नाम की भी बरकत है। So teach this to your children, to your daughters, to your wives, to your mothers, कि if something happens, and even teach this to yourself, पहला नाम अल्लाह का, शैतान से पनाह अल्लाह का नाम है, उसकी एक बरकत है, ठीक है? But merely a power differential is not sufficient. You know, employer-employee relationship में oppression हो रही है, professor-student relationship, अल्लाह अकबर, एक तमाशा है, the amount of unreported cases in our universities. तमाशा, religious institutions, this is happening. It's happening. You don't have to lie about it. Not all, but yes, it is happening. It's not सारे professors बुरे नहीं हैं, but it is happening. Schools में हो रहा है, ठीक है? Cousins में हो रहा है with age differences. And not non-consensual forced cases of some sort of harassment. And nobody does anything. आपको भी शायद पता हो अपनी फैमिली में 4 cases and you couldn't care less, which is a huge problem. Huge problem. Right? So, you know, there is a hadith in Bukhari of a story of a young needy orphan girl. This is ये पिछली उम्मतों में से है, ये अल्लाह के नबी ने स्टोरी नरेट की कि she was supported by one of her family members. वो यतीम बच्ची थी, तो at a particular time उसको पैसों की बहुत शदीद जरूरत पड़ी. She was in dire need of money and she had nobody but to turn to this man who had supported her. So, you know, this also changes as you grow up. So जवान होते हो तो ये आप यहाँ भी देखते हैं कि roles और attitudes change हो जाते हैं. So that man said that if you want that money, you will get it
in one circumstance, give your body to me. Okay? And वो इतनी मजबूर थी कि she ended up consenting. ठीक है, she ended up consenting. So when the time came, when they were about to sort of physically consummate that relation, so that woman, because in her moment of weakness, ने इजाजत तो दे दी, उसको बहुत घबरा, she didn't want that to happen. So she said this कि fear Allah, उसने उसको कहा कि fear Allah and do not do this except by way of legal contract कि यानी निकाह कर लो, ये मत करो प्लीज मेरे साथ. And उस शख्स पे इतना असर हुआ जो मैं आपको बात कह रहा था कि he basically what he walked away. He walked away. इस स्टोरी में लेसन आपको नजर नहीं आएगा, मैं आपको एक चीज सोचवाना चाहता हूँ. थोड़ा सा मैं स्टोरी सुना रहा था, डू यू फील क्या इतनी क्या पैसों की जरूरत थी कि हाँ ही कर दिया जिना करने पे, है ना? इतनी भी कौन सी कोई होती, पैसे चाहिए थे ना, भूखे रह लेते हैं, जो भी इशू था. बट वी डोंट लुक, जनरली स्पीकिंग, इज द फैक्ट कि यू नो हर शख्स की एट अ पर्टिकुलर टाइम अपनी इमोशनल साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है. उस मोमेंट ऑफ वीकनेस पे जिससे वो गुजर रहा है या गुजर रही है, वो तुम और मैं नहीं समझ सकते. सुसाइड केस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उस पे क्या गुजर रहा है उस बच्चे या बच्ची पे, कि she hangs herself from the fan, jumps off the roof, eats. It's something that कहना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है. बट जो समझ सकते हो ना कि there is something that dragged that girl or boy to that point. So there is something that dragged that girl to the point कि उसको ये मजबूरी में consent करना पड़ा. But then Allah saved her. So you know, when you women in need today, when you talk about the fact कि ये prostitutes हैं, चाहे वो आप लाहौर में देख लें, वो look at what got them there. It was something so terrible. You know, उनको सोसाइटी और हालात ने इतना बुरा तरह ट्रीट किया कि they ended up selling their bodies. And obviously बाद में you get used to things. That's human nature. You know, आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, आप सब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, for girls in universities do not dress appropriately. Do that, ठीक है ना? Let's be honest about it. They do not dress appropriately. पूरी बात सुन लेना, ठीक है? They are looking for affairs, ठीक है? They are looking for getting into trouble. One way or the other, that is happening. So it's very easy to say कि ये देखें जी ये फांसी है इसलिए ऐसे हुआ है वो. My question is very different. What gets them to do that? It's because our family system is broken. It's because they're unloved at home. It's because nobody is taking care of them. That's why they're doing all of this, to seek attention, unfortunately, or maybe other reasons. So we're to blame again as a family system. जब घर से प्यार नहीं मिलेगा, शफकत नहीं मिलेगी, तरबियत नहीं मिलेगी, तो यही होगा. तो ये तो कहना बहुत आसान है कि जी ये देखो ऐसे कपड़े पहने इसलिए ये होना है. बट ये क्यों नहीं समझ रहे कि क्यों उसका दिल लग रहा है इन चीजों में और उधर नहीं लग रहा? बिकॉज आपने अपना काम सही नहीं किया, मैंने अपना काम सही नहीं किया. इट्स नथिंग एल्स. जितना सुकून अल्लाह ताला ने माँ बाप से मोहब्बत में, बहन भाइयों से मोहब्बत में, इंटीग्रेटेड फैमिली में रखा है ना, उसका 1% भी इस घटिया रिलेशनशिप में नहीं रखा जो मैं और तुम यूनिवर्सिटी में अपने आप को फैंटेसाइज कर रहे होते. बट बिकॉज हमें घरों के सुकून का 0.1% भी नहीं मिलता, इसलिए हम उस 1% के लिए तरस रहे होते हैं जो हराम भी है और जिसने एंड अप हो जाना. उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर कोई बात नहीं करना. पेरेंट्स आर जस्ट नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. Why is it that you raised a daughter for 20 odd years, right? She was with you across the board, and the first day she goes to university, within a week you find out कि उसका किसी के साथ affair है, and she's even getting physical. You are to blame for that. It reflects कि आपने कैसी तरबियत की है. It reflects on you. Because there are those who save themselves. Trials सब पे आते हैं. There are those who fall and then get up again. So we are to blame. You as a brother are to blame if you've got a sister who's doing this. Because you've never provided her that shelter which the boyfriend is offering. It is not just about lust, and especially with women. Because men, it's a very different case. Mard to unfortunately are champions damagi taur pe. They're just looking for the physical aspect. I'm being very open. Women are looking for emotional security. वो भाई से नहीं मिली, बाप से नहीं मिली, माँ से प्यार नहीं मिला, फैमिली से नहीं मिला, so they're going to do what they're doing. तो हर गहरे गहरे के साथ चल पड़ेंगी. And then, अच्छा, unfortunately वो एरा गहरा भी कौन है? वो तुम्हारा ही कोई दोस्त है. तो तुम्हारी तरह का ही कोई 20-22 साल का नौजवान है जो फिर रहा है दूसरों की बहनों को देखने के लिए और अपनी बहन के बारे में सुपर प्रोटेक्टिव ब्रदर बनने के लिए कि अगर उसका बॉयफ्रेंड हो तो फोन भी तोड़ दूंगा, कमरे में लॉक भी कर दूंगा, 2 थप्पड़ लगा दूंगा. That's the brothers of this country.
Most of the brothers are like this. To use physical force, thinking के ये अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा पूरा हो रहा है, तो करें और बर्बादी करें भाई, और बर्बादी करें, क्या हो सकता है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु के दौर में एक औरत सफर कर रही थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैं कह रहा था, आई कम बैक टू दिस। एक औरत सफर, और ये मैं खुद तावील कर रहा हूँ, एक औरत सफर कर रही थी, अकेली सफर कर रही थी, ठीक है, शिद्दत की प्यास थी उसको, ये तो शी केम अक्रॉस अ शेपर्ड, तो उसने उससे पानी मांगा, सही है, तो द शेपर्ड सेड दैट आई विल ओनली गिव यू वाटर इफ यू कंसेंट टू गिविंग योरसेल्फ टू मी। व्हाटएवर हैपेंड डिटेल नहीं है, सही है, शी एंडेड अप कंसेंटिंग, शी एंडेड अप कंसेंटिंग, वो बात मशहूर हो गई, एंड द केस वाज रिपोर्टेड टू द कैलिफ, एंड कैलिफ इज उमर रज़ियल्लाहु। उनके पास केस आया तो उन्होंने हज़रत अली को कहा कि व्हाट डू आई डू विद दिस, गाइड मी। तो अली ने क्या फैसला किया, ही सेड कि शी वाज फोर्स्ड इनटू इट, ये मासूम है, शी वाज फोर्स्ड इनटू इट, ये मासूम है। पहला सवाल, किसी ने पूछा ये महरम के बगैर क्या कर रही थी, बताएं, किसी ने पूछा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से कितनी दफा देखा है, बंदा मर जाता है, ठीक है, डिजास्टरस मौत है, ठीक है, लोग खड़े हो जाते हैं इख्तलाफ करने के लिए कि जी हाथ इधर बांधने या उधर बांधने, ऐसे करना है, जनाजा नहीं हुआ, जनाजा हो गया, फलाना हो गया, जितनी वसत भी है ना फेक में वो भी नहीं देंगे, सारों को अपना इस्लाम उधर ही याद आ जाता है कि आज हम अपने मुफ्ती बन को साबित करके छोड़े। उससे सिर्फ एक चीज होती है कि लोग दीनदार लोगों से और ज्यादा मुतनफिर हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सही फिकी चीजें मत बताओ, आई एम सेइंग कि इतनी हिकमत पैदा करो कि कब क्या बात कहनी है। सो इफ योर सीसीपीओ कम्स आउट एंड सेज एक औरत क्यों अकेली सफर कर रही थी, एट वन लेवल मैं भी कहता हूँ कि हाँ, आइडियल ये है इस्लाम में कि महरम के साथ सफर करो, उसकी वेरिएंट्स भी है, शाफी मजहब में डिफरेंट है, कुछ चीजें वो है, सब कुछ ठीक है, बट क्या ये मौका है ये बात करने का, राइट? या क्या ये लेजिटिमाइज कर देता है कि फिर जो अकेला सफर करेगा उसको हम रेप कर देंगे? सो जहां तालीम देनी है इस चीज की वहां तालीम नहीं दे रहे, और जब मसला हल कर रहे हैं वहां तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट स्टनिंग। So the last 5-7 minutes that I have, I just want you to look at something that, yes, and I will not talk about these things, but just highlight them. कि one part of that reason is also the fact कि हमारी सोसाइटी में marriages को delay किया जाता है, which is one, if not one of all of the other things that I've cited. ठीक है, immorality has become mainstream. It has become mainstream. ठीक है ना? Pornography has become mainstream. Nobody's looking at that. I'm not saying any of this justifies what happened, but you also have to look at these things. ठीक है? So much so, look, pornography guys. What about soft porn that you have in Bollywood and Hollywood? What about the erotic images that they keep throwing at you and nobody thinks कि इसका कोई असर होता है, right? Objectification of the male and female, the masculine and the feminine bodies has been done by these people, and we are following actually. All this has a tremendous effect on us. I am not using this to justify male behavior, not at all. जो हराम है वो हराम है, we have to take responsibility and act, because अल्लाह के नबी के दौर में भी हालात खराब थे। उस जमाने में आए मेरे नबी जब नंगा तवाफ काबे के किया जाता था और माओ को विरासत में ले लिया जाता था to have relations, तो हम तो उससे in a notch better है। But what we also have to realize in this is the fact कि यार ये भी इश्यूज है, इनको भी एड्रेस करना है। पर देखो इनमें से कुछ इश्यूज जो है ना वो हमारे शायद हाथ में नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो टू कम ऑन द मीडिया एंड टू से कि जी फाशी आम हो गई है, पोर्नोग्राफी है, फलाना है, ये है, वो है, तो राजियाउल हैव स्पोकन नॉट अबाउट दिस इन हिज सेशन, एंड क्या कहते हैं, दैट्स वन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कैमरा को साइट्स बंद करनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, आपका मीडिया कंटेंट फिल्टर्ड होना। जैसे इमरान खान और वो said an interesting thing, मैंने उर्दूगल पे इसलिए लगाया लोगों को कि दे शुड सी कि रोमांस से बियॉन्ड कोई चीज होती है, तो आपने जिन्होंने देखा है उर्दूगल उनको पता होगा, ठीक है। सो बहरहाल ये नहीं, देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स एंड इस पे तो बहुत डिबेट हो सकती है।
मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ ना कि इनमें से अक्सर चीज़ें एक्चुअली मेरे आपके कंट्रोल में नहीं है सोसाइटल लेवल पे। आप पढ़ नहीं बंद कर सकते, ठीक है ना? आप जल्दी शादी खुद तो कर सकते हैं, वो बड़ी मुश्किल और ज़िद कर करके, ठीक है? वो दुखती रग है काफ़ी सारे लोगों की, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप माशरे में से फहाशी को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है? ये चीज़ें आप मूवीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्टिफिकेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं? राइट? तो ये गलत है। अल्लाह किसी मौके पे आपको कुछ दे, इंस्टीट्यूशनली आप ज़रूर कर सकते हो, यू आर हेडिंग समथिंग, अपनी कंपनी में, अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, मे बी 10 ईयर्स 15 ईयर्स, वो तो एट एन इंडिविजुअल लेवल दैट कैन देन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। बट यू नो, हमारा रिस्पॉन्स जो है ना, वो ये होना चाहिए कि बस सिर्फ एक सवाल अपने दिल से पूछो। आई एम एड्रेसिंग द ब्रदर्स इन पर्टिकुलर नाउ। आस्क योरसेल्फ, तुम्हारी नज़र कितनी पाक है? बस ये सवाल का जवाब दे। Do you turn back to look at a girl when she passes by you if you think she's hot? I do. At times. शायद किसी को पता नहीं चलता, लोग समझते हैं मौली साहब कुछ और देख रहे हैं, बट प्रॉब्ली शायद आई डू। तो कुछ प्रॉब्लम मेरे दिल में है। Do you check pictures of people who've been added to your Facebook and Instagram accounts? Forget about the fact कि उन्होंने लगाई है. Do you check pictures or no? Do you check profile pictures? Do you check statuses of women who you find attractive? Do you recognize the fact कि ये ज़्यादा fit है और ये कम fit है? And you dwell thoughts onto that without anybody finding out? You don't have to answer. When I ask these questions to myself, sadly कुछ के जवाब मुझे yes मिले अपने आप से. So why do I have to blame somebody else when मैं तो खुद ऐसा हूँ कि सब नियमतें होने के बावजूद मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सक रहा, दर्द देने के बावजूद मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सक रहा। सो बहुत सारी दुआ की भी ज़रूरत है, बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है, बहुत सारी फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि लोगों के तो बड़े अजीब-अजीब हालात होते हैं। अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाज़ा है और हम इस इवन देन इन कामों में कर रहे हैं। दीन की समझ दी है, हम इवन देन ये कर रहे हैं। किसी अच्छी सोहबत में बैठने का मौका दिया, दिन में कुछ नमाज़ें, सजदे टेकने की नियत दी, फिर भी हम ये कर रहे हैं। आस्क अनदर क्वेश्चन, ये तो पर्सनल हो गया ना, ठीक है? You've all got friends around yourself, ठीक है? जैसे भी आपके दोस्त हैं, कज़िन्स, पीयर्स, कॉलीग्स, इनकी क्या डिस्कशंस हो रही होती हैं बॉयज़ ग्रुप्स में? शायद आप नहीं करते। Have you tried stopping people? Are you disturbed by the fact कि ये हो रहा है? Or do you enjoy it? And you will find the answer again might be कि we just enjoy it, we live in the moment. Slangs like बच्ची चेक करो, फलाना देखो, ये टाइट है, ये नहीं है। You know this all. Who's doing that? Who do you think is doing that? So we are to blame, my friends. यानी ये आप ठीक कर सकते हो. And if you fix this to fix the entire generations to come, inshallah. And if you think नहीं नहीं मैं तो फिक्स नहीं होगा, बड़ा इंशाल्लाह जब बेटी होगी ना उसकी बड़ी सही उसको मैंने बीवी को भी सही पर्दा करा के रखना है, बेटियों को भी खींच के रखना है, फिर देखें क्या होता है। तो ये how are you to your colleagues, to your co-workers, to your friends of the opposite gender? उनके साथ तुम्हारा क्या बर्ताव है, क्या रवैया है? तो अल्लाह कुरान में जगह से कह रहे हैं ना कि मुझे तुम्हारे दिल के अंदर भी जो है वो पता है। असल प्रॉब्लम वो है, शैतान हमें डिलूट कर देता है कि किसी और की गलती को बड़ा करके देख के, एंड वो गलती तो है ही, द रेप विक्टिम हैज टू बी टेकन टू ट्रायल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट वो भी हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली ना स्टोरी बन गई है। एंड देन द मीडिया इज आल्सो ऑल कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट, किसी न्यूज़ चैनल ने आई डोंट थिंक कि कोई इतनी कोशिश की कि यार कोई इस्लाही अच्छी बात की जा सके तो हमको कोई पता। दे जस्ट वांट टू गिव यू मैक्सिमम स्कूप्स, आधे गलत आधे सही, ये वो, एंड हम भी उसको स्टार प्लस बनाया था।
बिकॉज आई डोंट हैव टेलीविजन एट होम, शुक्र है आधी बातें पता ही नहीं होती। वरना क्या है, सारी की चल रही है, ये हो गया, इसको पकड़ लिया, नहीं पकड़ा, इसने ऐसे कह दिया, पीएम ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। What does that do? It does nothing. What have you done in the past 1 week since this happened? What have you changed around yourself? You could have done at least one thing. Did you bought a drink, put duffels for that lady? Did you sit down and just make dua for her? Did you educate the women around you? Did you think of the fact कि मैं औरत को ज्यादा बेहतर रिस्पेक्ट करूंगा, कि शायद उससे एक बरकत पैदा हो जाए, कोई एक, फिर कैसे अचीव होंगी चीजें? बस हैंग द रेपिस्ट, स्टेटस लगाओ, अपडेट करो, 4 लोगों में तबसरा करो, वहां भी इंपॉर्टेंट फील करो कि उसको आपने वो डिटेल बताई जो उसको भी नहीं पता थी, कि नहीं ऐसे हुआ था, फलाने ने मुझे, मामू के चाचे के पुत्र ने बताया कि ये करने लगे, इनसाइड स्टोरी लेके आओ और चल पड़ो। बस हफ्ता 2 हफ्ते बाद तो बात ही भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे, फिर कोई और जैनब आनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली कोई और आनी पड़ेगी, दोबारा जो होगा तो फिर हम हफ्ता 2 हफ्ते जज्बाती होंगे और चलेंगे। तो मेरा गिला अपने आप से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विद ऑल सिंसेरिटी, ये मैं कोई फेक आजी में नहीं कह रहा, और मैं ये गिला चंद दिन से अपने आप से कर रहा हूँ। मेरा गिला आप सबसे सामने बैठे हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कि वो चेंज हमें हमारे किरदार में नजर आनी चाहिए। September 15 हो गया है ना, यूनिवर्सिटीज आर ओपनिंग, सो मजा तो तब आएगा ना कि if we walk in those universities as a different person, where our women start to feel that these boys, these young men are now acting like how our Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba were. They're acting with dignity. They actually care about us. ये नहीं कि बहन बना के बाद में जो हमारा स्टाइल है। हाँ, that's the only thing we can say to you. That's the only thing we can say to you. और आखिरी बात बस मैं एक कहूँगा कि there is a very fine line, मुझे ये ज़रूरी है, there is a very fine line between justice and forgiveness. Between justice and forgiveness. तो अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। एक बार ये बात याद रखो, ये मैं रेपिस्ट के लिए नहीं कह रहा, आपको जनरली एक बात समझा दूँ, तो आपको खुद सेंस होनी चाहिए कि ये कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है? अल्लाह चाहे तो किसी को माफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जस्टिस और फॉरगिवनेस में एक बात याद रखो कि when something is done in society, ठीक है, which is non-consensual, ठीक है, which means it is forced, and that thing you find out about it, let alone कि जी मीडिया में पता चला नहीं पड़ा, उसको भूल जाओ, आपको पता चल जाता है, and you have to use your emotional intelligence and the Quran, the science there to sort of understand this as well, and this is subjective. कि do you think this will happen again? Do you think यहाँ नुकसान पहुंचने का दोबारा केस है, या do you think ये फोर्सफुली था, ये वो था? फिर आपको इसको रिपोर्ट करना है, फिर आपको इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, आपको बताना है ड्यू अथॉरिटीज को, अपनी तरफ से एक्शन लेना है, सब कुछ करना है। बट एक और सिनेरियो ये है कि यू फाइंड आउट अबाउट अ सिमिलर सिन व्हिच इज कंसेंसुअल, एनी अदर सिन इन जनरल, बट इट इज डन इन प्राइवेट, फिर आपको रिपोर्ट नहीं करना, याद रखें, फिर आपको रिपोर्ट नहीं करना, ये हदीस से भी मिलता है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपने फिर उस पर कुछ एक्शन लेना है तो वो उससे लेना है जो गुनाह कर रहा था, उसके पास जाओ, उसको कहो यार आई नो यू आर डूइंग दिस, ये गलत है, अल्लाह का खौफ करो, समझाओ उसको और खत्म हो जाओ। शायद तुम्हारी बात का असर हो जाए, शायद ना हो, अल्लाह पे है, बट डोंट गो अराउंड पब्लिसाइजिंग इट। हदीस क्या है कि जो दुनिया में लोगों के ऐबों पे पर्दा डालेगा, अल्लाह उसके ऐबों को पर्दा डालेंगे। अब ये सारी बात मैंने कही क्यों? क्योंकि हम करते क्या है, ये हदीस को उठा के रेप केस में लगा देते हैं। एक और बड़ा डिजास्टर, ये हदीस हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं जी फलानी तो बहुत बड़ी हस्ती थी, उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, सहाबा से बड़ी हस्ती थी, सुनाई नहीं आपको सहाबा की स्टोरी, नाम नहीं आया ना, बट उनसे बड़ी हस्ती थी, कहा किसी ने कि नहीं नहीं बात खत्म कर दी, कोई मसला नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जहां पब्लिक ऑफेंस है, जहां हार्म है, ठीक है, तो और रिपीट का चांस है, वहां बात को एड्रेस किया जाएगा, पब्लिकली रिपोर्ट किया जाएगा, उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, सब कुछ होगा। बट जहाँ प्राइवेट ऑफेंस है वहां बात भी प्राइवेटली होगी,
वहां सतारी का मामला होगा, वहां बेहतरी, बिकॉज मकसद दोनों चीजों में इस्लाह है। एक चीज में इस्लाह प्राइवेटली क्यों है, बिकॉज उन दो फरीकैन तक है वो चीज, और एक चीज में पब्लिक क्यों है, बिकॉज अब पूरी सोसाइटी एट रिस्क है। तो इसलिए फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू ब्रिंग इट अप देयर, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे याद रखो, अल्लाह नोज व्हाट इज इन द हार्ट्स, सो ही विल डू दैट। So I want to end with the ayah that I again began with. सिर्फ जुज है आयत का, इंटरेस्टिंगली यही आयत है जिसको बीटिंग वर्स भी कहा जाता है। I've given a session on that which is available online. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Men are caretakers of women. Let's start being caretakers of our women. It starts here. Let's use this incident to sort of pray for our sister, pray for their children, pray for that family, and for thousands of cases worldwide, within the Ummah, out of the Ummah, that have been victims to these things. And let's start being better people who care for our women. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. दुआ कर लीजिए। सुब्हान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। ए मेरे मालिक हमसे राज़ी हो जा, ए मेरे मौला हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से मुआशरे में बुराई है, मुआशरे में गुनाह है। अल्लाह हमारी इन तमाम बुराइयों को, गलतियों को माफ़ कर दीजिए। हम सब जमा हुए हैं अल्लाह औरतों के हुकूक को पहचानने के लिए, उनके मकाम को पहचानने के लिए। अल्लाह हमें इसकी सही समझ अता फरमा, हमें किसी का हक मारने से बचा। रब्बे करीम, ये जो वाक़या हुआ और इससे पहले ना जाने कितने ऐसे वाक़ये हो चुके हैं, अल्लाह इन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी जो बहन जिनके साथ ज़्यादती हुई, अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत भी फरमा, उनकी हिफाजत भी फरमा। अल्लाह उनकी जन्नत में दर्जात को बुलंद फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके ज़हन से, दिल से इस चीज़ का गम, इसकी तकलीफ को दूर कर दीजिए। अल्लाह हमारी बेटियों की, अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह वो हमारी बेटियां सही, पर अल्लाह वो आपकी बंदियां हैं। अल्लाह आप हर एक के मौला हैं, पालने वाले हैं, मुरब्बी हैं। रब्बे करीम मुआशरे से शर को ख़त्म फरमा, हमें बुराई को पहचान के नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला सही बात कहने की और सही बात समझने की तौफीक अता फरमा, अपने दीन के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये जो कोविड का सारा मामला रहा है, इससे अल्लाह अब जबकि इदारे खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, कारोबार खुल रहे हैं, अल्लाह पहले भी आपने इस मुल्क पे, हमारे लोगों पे बहुत फजल फरमाया। अल्लाह आइंदा भी फजल फरमा, करम फरमा, सेहत की नेमत अता फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था ना मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह हम बदलने का इरादा कर चुके हैं, अल्लाह आप इस इरादे को कबूल कर लीजिए और हमें सीधा, सादा, सच्चा और सुथरा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। नजरों में हया पैदा फरमा, बाहया बन के, नजर को झुका के, इज्जत के साथ औरतों के साथ इंटरैक्ट करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन बिरहमतिका। Jazakumullahu khair wa ahsanallah jaza. Inshallah, we will continue to resume this on site now, provided के कोविड stays normal. I'm sorry, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है, बट आई थिंक वो आवाज़ बहुत मफिल हो जाती है, ठीक है। सो सी कि क्या होता है। तो बाकी ये है कि टाइम जो है, बिकॉज अब हम इसको वीडियो कर रहे होते हैं ब्रॉडकास्ट, इन द पास्ट इज व्हाट्स हमेशा 7:45 एडवर्टाइज करते हैं, 8 शुरू करते हैं। वी ऑलवेज गिवन अ 15 मिनट बफर। अब जो हम टाइम एडवर्टाइज करेंगे हम उसी पे शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ द वीडियो स्ट्रीम, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। तो जो एडवर्टाइज टाइम होगा उसी पे स्टार्ट करेंगे। आज बिकॉज वी एडवर्टाइज, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी नमाज के टाइम की, तो वी विल प्रे इशा है। जिन लोगों ने पढ़ ली है पढ़ के आए, दैट्स फाइन। जिन्होंने पढ़नी है तो अभी हमेशा जमात में पढ़ लेते हैं, फासले के साथ खड़े हो। प्लीज़ हाथ मत मिलाएं किसी से, ठीक है, मिलाने हैं तो बाहर जाके मिलाएं,
ठीक है, एंड मेरे से खुसूसन ना मिलाएं, नॉट बिकॉज मैं डरा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट कि आफियत के साथ, ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, उसके बाद गले भी मिले, हाथ भी मिलाएं, सब कुछ करें, बट वेल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इफ इट स्टार्ट्स टू स्पाइक, सब बंद होना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट में बड़ी बोरिंग होता है कैमरे के सामने बयान देना। तो वेरी हैप्पी कि मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं फाइनली, सही है, और स्कूल्स बंद होना, तो जो नहीं भी पढ़ना चाहता वो भी स्कूल वापस जाना चाहता है, तो इस सब की हिफाजत के लिए जिम्मेदारी वाली चीज़ है, उसकी कोशिश करें। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो इंशाल्लाह, एंड बाकी मैंने एक दो लोगों से मिलने का भी कहा था, आई विल मीट देम फर्स्ट, एंड इसके अलावा भी किसी ने मिलना है तो वी कैन सिट विद यू इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासल्लम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नमाज की तैयारी कर लें, तीनों कमरों में वॉशरूम्स है, अगर